آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے 3-4 مرتبہ الیکشن کے مواقع ضائع کیے۔ کیا وجوہات تھیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن قبول نہیں کیا؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنانا ہے۔ ملکی سیاست کے افق پر نئی سیاسی جماعت کا جنم۔ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے باضابطہ نئی جماعت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں پرویز خٹک نے سوال اٹھائے کہ پی ٹی آئی نے 3 سے 4 مرتبہ الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے؟ کیا وجوہات تھی کہ پی ٹی آئی نے الیکشن قبول نہیں کیا؟ جس دن یہ راز کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ پی ٹی آئی کا اصل پروگرام کیا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار کا راستہ اپنا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سمیت تحریک انصاف کے 57 سابق ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کے پہلے اجلاس میں سابق صوبائی وزیر اشتیاق ارمر، شوکت علی، فرید صلاح الدین، کلندر خان لودھی، ملک شوکت علی اور افتخار علی مشوانی شریک ہوئے۔ ابراہیم خٹک، ارباب وسیم، پیر فدا محمد، ملک واجد، احتشام جاوید، غزن جمال، تاج محمد، عزیز اللہ، فضل مولا، محمد اعظم خان، مصور خان، محمد دیدار، عبدالغفور، احمد حسین شاہ، وزیر زادہ اور ضیاء اللہ بنگش بھی اجلاس کا حصہ بنے۔ اجلاس کے اعلامیے میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی گئی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی زیر صدارت 258ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء کو حکومت کی معاشی بحالی کے منصوبے میں فوج کے کردار بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس موقع پر کہا کہ بامقصد تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 258ویں کور کمانڈر کانفرنس مادری وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکاء کا معاشی بحالی کے لیے تکنیکی، انتظامی سمیت ہر قسم کی معاونت کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کو داخلی سلامتی کے موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ قلعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے دہشت گردوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائی کی آزادی میسر ہے۔ دہشت گردوں کو ان سہولیات سمیت جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی سے پاکستان کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر تفصیل سے غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس موقع پر کہا کہ بامقصد تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ کانفرنس کے شرکاء کو حکومت کے معاشی بحالی کے منصوبے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے دائرے میں زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں فوج کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد ورلڈ بینک نے بھی منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ اس وقت پرنسپل سیکریٹری ٹو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات ہیں۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ کا شمار ملک کے قابل بیوروکریٹس میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد ورلڈ بینک نے بھی منظوری دے دی ہے۔ رخ کرتے ہیں شہری قائد کے، جہاں کے منتخب بلدیاتی نمائندگان کے پہلے اجلاس میں جماعت اسلامی کی جانب سے شدید احتجاج اور شور شرابہ کیا گیا، نعرے بازی بھی کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی نے حافظ نعیم الرحمان کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ساحل کا حل صرف جماعت اسلامی نہیں۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ نعرے بازی، شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی سٹی کونسل مچھلی بازار کا منظر پیش کرتا رہا۔ کراچی کے بلدیاتی نمائندگان پہلے اجلاس میں مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے سیاسی نعرے بازی کرتے رہے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے شہر کو تباہ کر دیا اور قبضہ کر کے میئر بن گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی دشمنی کرتی ہے۔ فیئر ہال کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی بولے کہ حل جماعت اسلامی نہیں ہے، ایک شخص نے اپنی انا کی خاطر سب کچھ مفروش کر کے رکھا ہوا ہے۔ الخدمت کے ذریعے خدمت کرو، سیاست مت کرو۔ بابا تم لوگوں کی وجہ سے کراچی کی فٹ پاتھیں ختم ہوئی، جہاں پہ تم نے کھمبے لگا کے بل بورڈ لگا دیے تھے، اور تم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ تم نے 45 کروڑ روپے اکٹھا کر کے برج بنایا۔ ہمیں اپنے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل ہے اور حل جماعت اسلامی نہیں ہے۔
मैं इनको मुहिब वतन मुहिब कराची समझता था। एक शख्स अपनी अना की खातिर पूरे शहर को मफलूज करके बैठा हुआ है। अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत ना करो। कराची के बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने आ चुके हैं। एक दूसरे की जानिब से सियासी इल्जामात में तेजी भी आ गई है। शहरी सवाल करते हैं कि कराची के मसाइल आखिर कब हल होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को आइन और कानून के मुताबिक करार देते हुए फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन व कानून के मुताबिक आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स में हर तरह के फेयर ट्रायल का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आइन से पहले मौजूद है। दोनों एक्ट के तहत इक़दामात कानून के मुताबिक है। आर्मी से मुमासिल कवानीन के तहत बहुत से दीगर अदालती फोरम्स भी बनाए गए। तमाम फोरम्स की कार्रवाई का अपना तरीका कार है। अदालती फोरम्स के अलावा दीगर फोरम्स की मौजूदगी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अपने खिलाफ रेफरेंस में बरियत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और निशानदही की कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ कोई शवाहद नहीं मिले और सिर्फ सियासी बुनियादों पर रेफरेंस दायर किया गया है। समाअत के दौरान हमजा शहबाज कमर दर्द की वजह से पेश नहीं हुए। उनके वकील ने एक पेशी के लिए हाजिरी माफी की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दौरान समाअत वकील ने इस्तदा की कि अदालत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुकदमा से बरी करने का हुक्म दे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 20 जुलाई को रेफरेंस के दीगर शरीक मुलज़िमों की बरियत की दरखास्तों पर वकला के दलाइल सुनेगी। IMF की शराइत के साथ नाक़िस हुकूमती पॉलिसीज़ भी बिजली के नरखों में इजाफे की वजह बनने लगी हैं। IPP से किए गए माहिदे और गर्दिशी कर्जे बिजली के भारी बिलों का बाइस बन रहे हैं। सारिफीन बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 50% से ज़ायद कैपेसिटी चार्जेस अदा करते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान यूसुफज़ई। बिजली की फी यूनिट कीमत की 50, महंगे ईंधन का इस्तेमाल, कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली महंगी होने की बड़ी वजूहात, टैक्सेस की भरमार, सार्फिन के लिए अलग वबाले जान। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक पन बिजली की औसत पैदावारी कीमत 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट है, जिस पर 16 रुपए 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस लिए जाते हैं। कैपेसिटी चार्जेस आयद होने के बाद 7.25 रुपए वाली ये बिजली 22 रुपए 95 पैसे फी यूनिट हो जाती है। दरामदी कोयले से बिजली की असल पैदावारी लागत तो 16 रुपए 71 पैसे फी यूनिट है, जिस पर 23 रुपए कैपेसिटी चार्जेस आयद होने के बाद फी यूनिट निर्ख 40 रुपए 34 पैसे तक पहुंच जाते हैं। फर्नेस ऑयल से बिजली की औसत पैदावारी लागत 23 रुपए 74 पैसे फी यूनिट, जबकि कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपए 82 पैसे हैं, जिसके बाद फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावारी लागत 48 रुपए 56 पैसे फी यूनिट की सतह पर पहुँच जाती है। RLNG से बिजली की औसत पैदावारी लागत 23 रुपए 56 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 27 रुपए 86 पैसे हैं, और RLNG से बिजली की पैदावारी कीमत 51 रुपए 42 पैसे फी यूनिट है। सारिफ को बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स और दीगर टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तवानाई माहिरीन का कहना है कि जब तक IPPs के साथ किए गए मायदों पर नजरसानी नहीं होगी, बिजली के निर्खों को मुनासिब सतह तक लाने का मामला हल नहीं होगा। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। 20 से 22 जुलाई के दौरान कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। रवा हफ्ते मानसून बारिशों की पेशगोई। मंगल से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और इस्लामाबाद में बारिशों का इम्कान। 20 से 22 जुलाई के दौरान कराची, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब से मानसून हवाएं आज रात मुल्क के बलाई व वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। मानसून हवाएं 19 जुलाई को शिद्दत इख्तियार करेंगी, जिसके नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस दौरान
दौरान बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध में भी कहीं कहीं वक्फे से बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरी खुसूसन सियाहों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। बैनुल-अक़वामी माशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती बारे तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक फ़ज़ाया की बेमिसाल पेशा वराना महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाक फ़ज़ाया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाया के मुताबिक एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाया को जिद्दत से इस्तवार करने और मकामी सलाहियतों के फ़रोग के लिए जारी मुख्तलिफ मनसूबों बारे आगाह किया। एयर चीफ मार्शल ने मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़द करने के लिए हुकूमत की पॉलिसीज़ और इक़दाम की तारीफ़ की। एयर चीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को पाक फ़ज़ाया के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पाक फ़ज़ाया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। पाक फ़ज़ाया के एहलकार मुल्क के दिफा और कौमी सलामती के लिए बदलते चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। खबर है अदालती उमूर से। लाहौर हाई कोर्ट ने हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार को 5,000 रुपये जुर्माना करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 10 रोज़ आगाही मुहिम चलाएं, उसके बाद 5,000 रुपये जुर्माना करें, शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत ट्रैफिक हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने हिदायत की कि हेलमेट की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए रूल्स बनाएं और 5,000 रुपये जुर्माना करें। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले 10 रोज हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीर करें और शहरियों को आगाही दें। दौरान समाअत अदालत का CBD अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने पर सख्त नाराजगी का इजहार। CEO CBD इमरान अमीन और सेक्रेटरी हाउसिंग से जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अंडरपास पहली बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सका। अदालत ने कलमा चौक CBD अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने से इर्द गिर्द के घरों के मुतासर होने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़िश्ता 3 ट्रेडिंग सेशंस में डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। अमरीकी डॉलर की कदर में इस दौरान 2 रुपये 80 पैसे का इजाफा हो चुका, जबकि सोना भी मजीद महंगा हो रहा है। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में 1 रुपए 67 पैसे इजाफा हुआ और ये इंटरबैंक में 279 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स का कहना है कि इंटरबैंक में डॉलर की मांग रुपए की कदर में कमी का सबब बन रही है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। इसके अलावा सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। फी तोला सोना मजीद 1600 रुपए महंगा होकर 2,14,800 रुपए तोला हो गया।